Hello and welcome all students. We will be dealing with the subject Family 2. Let me first introduce myself. I am Advocate Ambar Arun Joshi, practicing lawyer, and I usually practice in Bombay High Court as well as subordinate courts and mainly in Thane District Court. Now coming to the subject, we will be dealing with Family 2. So mainly Family 2 is broadly divided into two parts. First part is the uncodified law and second part is the codified law. Codified law will consist mainly of the main acts or the main codified part of the Hindu law, that is Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, and Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Now, first let us understand one thing. I assume that certain students of your batch must be in my class in last year, where I had actually started teaching you law of crimes and had dealt with certain offences of Indian Penal Code. So let me first give you some guidelines. As by rule, every lecture, whatever videos or whatever, even when our physical college starts, please make it a point that every student will carry a bare text with him wherever the law is a codified law. bare text आपके हाथ में होगा तो लॉ समझने में और आसानी हो जाएगी. whenever I am reading any statute, कोई statutory provision अगर मैं point out कर रहा हूँ, read कर रहा हूँ, it is always better that you also look into the statute and read that book. वो words आपके सामने हो गए तो आपके दिमाग में वो घुसने में ज़्यादा आसान हो जाएगा. उसी बात पे एक मेरे को हमेशा याद आता है, मैं कभी कभी क्लास में जोक भी मारता हूँ. वो गाना सुना है ना, एक हिंदी गाना है फेमस, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना. वैसा होता है. मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ लुक इनटू द बुक्स, इट मेक्स नो पॉइंट इन लुकिंग एट माई फेस. मेरा चेहरा वैसा भी बहुत अच्छा नहीं है. आई एम नॉट अ वेरी हैंडसम पर्सन टू लुक एट दैट अपार्ट. ओके, नाउ सी फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. आपका फैमिली 1 हो चुका है लास्ट सेमेस्टर में. फैमिली 1 सब्जेक्ट में क्या था, आपको बेसिकली मोहम्मदियन लॉ था और इंडियन डाइवोर्स एक्ट था, विच डील्स विथ क्रिश्चियंस अगर पार्टीज है. नाउ सी, फर्स्टली अंडरस्टैंड, व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ वी हैव अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड. कई कोर्ट में सुना है कि अरे फलाना फलाना आदमी को सज़ा हो गई, या एक गुनहगार है उसको सज़ा हो गई, फाउंड गिल्टी, तो उसको पूछा जाता है तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, पारसी हो या और कोई हो. नहीं पूछा जाता है. क्यों? बिकॉज इट मेक्स नो डिफरेंस. बट अनलकीली आवर फैब्रिक ऑफ सोसाइटी इज सो डिफरेंट and certain things are there, political things are there which I am not interested in going into, due to which a uniform civil code is not accepted or not enacted even today. That is the reason why personal laws are applicable to different parties depending upon their religion. Now one more thing let me make clear. Whenever I am giving lectures, I will be speaking in English as well as Hindi and as well as Marathi. Now this is a usual request which I always get, and such request you can make only in Maharashtra, that sir हमको मराठी नहीं आता है. कोई और स्टेट में जाके बोल के देखो, nobody will entertain you. But anyways we have to accommodate anybody and everybody because Maharashtra is the most secular state in India, जिसने सबको एक्सेप्ट किया और सबको अपनापन दिया और सबको एक्सेप्ट किया हुआ है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं मराठी में कुछ बोलूँ भी, so please understand one very common thing, that the same thing has been repeated in English and if possible also in Hindi. So students who don't understand Marathi, अगर मैं मराठी में कुछ जोक मार रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, you might not be able to understand only that part, but nothing of your portion you will miss and nothing you will not understand. ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि अरे मेरा कुछ मिस हो गया, सर ने मराठी में बोला और मुझे समझ में नहीं आ रहा है. That will not be the case. Only certain things are there, colloquial patterns are there. We are living in Maharashtra. मी मराठी आहे, समोर बसलेले अर्धे अधिक स्टुडंट्स मराठी, अर्धे अधिक 80% 90% स्टुडंट्स मराठीच आहेत. त्यामुळे मराठीत बोलणं हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि मला तो कोणी थांबवू शकत नाही. सो नो क्वेश्चन्स, सो नो इश्यूज विथ दॅट. हिंदी, मराठी and all that thing, but you will not miss anything. This is my assurance to you. Now see, going further, फैमिली 1 आपका हो चुका है.
Now, what is the basic difference between a Hindu marriage and a Muslim nikah और a Christian marriage? इसमें क्या फर्क होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है. As per Hindu law, as per family too, as per Hindu law, Hindu marriage is a sacrament. उसको एक संस्कार कहा जाता है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट संस्कार. मतलब वो जो चार ये वेद के हिसाब से दिया हुआ है कि आप 4 स्टेजेस में रहते हो. पहले बाल अवस्था है, फिर आप बाल अवस्था में से किशोर अवस्था में जाते हो. जब भी अगर ब्राह्मण है तो वहाँ पे थ्रेड सेरेमनी हो जाती है. और उसके बाद में पुराना गुरुकुल सिस्टम याद करो. गुरुकुल में बच्चों को पढ़ने को भेजते हैं और बच्चा फिर पढ़ लिख के वापस आता है. तो वो जो किशोर अवस्था है जिसमें उसको पढ़ना है वो गुरुकुल अवस्था है. देन ही कम्स बैक एज अ ग्रेजुएट, एज अ लर्नेड पर्सन जो सब कुछ सीख चुका है. एंड देन उसको कौन से आश्रम में जाना है? उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है. देन उसकी शादी हो जाएगी. शादी के बाद में उसको जब भी उसका शादी का ऑल ड्यूटीज़ हो जाएगा, व्हेन इज ऑल ड्यूटीज़ आर प्रपंच जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद में लास्ट अवस्था जो है, लास्ट ये कौन सा है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए. संन्यास में नॉट नेसेसरी कि आपको हिमालय में उठ के चले जाना है. ओनली थिंग इज दैट जो संसार उसमें से आपको ध्यान हटाना है और कहीं और लगाना है. फिर आपका जो इंटरेस्ट हो आप करो, बट एंड यू नीड टू रिलीज योरसेल्फ. तो सेम सिस्टम पे देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट संस्कार है एज पर हिंदू लॉ. इसीलिए देखो हिंदू लोगों में होता है कि हिंदू लोगों की शादी करवाई जाती है. देखिए इसीलिए बोलते हैं ना विवाह संपन्न हुआ. विवाह संपन्न हुआ मीन्स व्हाट? देयर आर सर्टन रिचुअल्स, सर्टन सेरेमनीज विच यू हैव टू अंडरगो, एंड देन ओनली अ हिंदू मैरिज इज सॉल्मनाइज्ड. सो एज एन इंग्लिश लँग्वेज उसको काय बोलते हैं? मॅरेज इज सॉल्मनाइज्ड. मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात? विवाह संपन्न झाला आणि काही विधी करायला लागतात और कुछ विवाह संपन्न हो गया. अभी देखो जो मुस्लिम लोगों का मैरिज है जिसको निकाह बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निकाह पढ़वाया गया. और इंग्लिश लॉ के अंडर मैरिज को क्या बोलते हैं? द मैरिज हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ सी बेसिक डिफरेंस और द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन मैरिज, मुस्लिम मैरिज ऑन वन साइड and Hindu marriage on the other side is that a Muslim marriage is a contract. It is a contract for what? For procreation of children. कि तुम्हारा वंश आगे चलना चाहिए, बच्चों को जन्म देना चाहिए. इट्स अ फ्लो. तो अगर आपको किसी ने कुछ सिखाया आप भी दूसरे को सिखाओ. सो एक फ्लो है. वो बोलते हैं ना नदी है, नदी का पानी है. अगर पानी एक जगह पे हो जाएगा, जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेल हो जाएगा. सो म्हणतात म्हणून मराठीत म्हणतात ना माणसाने कसं असावं? नदीसारखं असावं. नदीचं पाणी स्वच्छ आणि फ्रेश का असतं? गोड का असतं? कारण ते सदैव वाहत असतं, वो बहते रहता है. तो पानी अगर नदी का बह रहा है तो बहता पानी कभी भी अच्छा होता है. पानी जमा हो गया देन सर्टन एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल नॉट बी राइट फॉर कंजम्पशन. सो पोर्टेबल वाटर का वो कंसेप्ट रहता है. सो यहाँ पे आप देखो कैसा है, एक करना पड़ेगा. देन अंडर द नाउ सी हाउ डू यू कभी कोई ये अटेंड किया है क्रिश्चियन मैरिज? क्या होता है? कुछ नहीं होता है. खाली 1 घंटे में शादी हो सकती है एंड देन इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ पार्टी और एक कॉकटेल पार्टी हो सकती है. क्या होता है? वो प्रीस्ट आता है. प्रीस्ट क्या करता है? वो पूछेगा आए सो एंड सो मेरा ये नाम है. फिर वो कुछ धर्म की 2-4 चीज़ें बताएगा जो अच्छी होती है. एंड देन ही विल आस्क द हस्बैंड, द ब्राइड, दैट तुम्हारा नाम सो एंड सो ये है, सो डू यू एक्सेप्ट दिस अदर पर्सन एज योर ब्राइड? उसको क्या बोलना पड़ेगा? आई डू. लड़की को फिर पूछा जाएगा दैट दिस पर्सन एक्सेप्ट यू एज योर वाइफ, एज हिज वाइफ. डू यू एक्सेप्ट हिम एज योर हस्बैंड? देन शी विल से आई डू. तो दोनों ने आई डू कर दिया तो हो गया, काम खत्म. शादी हो गई, रजिस्टर पे साइन हो गया, रिंग्स आर एक्सचेंज, अ किस इज एक्सचेंज. वो लड़का लड़की एक दूसरे को किस करेंगे, पीपल विल क्लैप, केक विल फॉलो एंड कॉकटेल पार्टी एंड डिनर पार्टी. बात खत्म. मुस्लिम मैरिज का देखो क्या होता है? वो काजी आएगा, वो निकाह पढ़वाता है. उसका एक छोटा सा सेरेमनी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कुछ रिचुअल्स रहते हैं वो करने पड़ते हैं. नॉट इवन रिचुअल्स, कुछ चीज़ें जो उनको करनी पड़ते थे वो वही करेगा. मैं वल सो एंड सो, तुम्हारा इसका लड़का उसका लड़का, तुम्हारा नाम. आई एम नॉट वेरी गुड एट उर्दू. क्या आप इससे निकाह कबूल फरमाते हो? तो लड़की को पूछा जाएगा, करवाते हो. और वहाँ पे इवन व्हेन इट कम्स टू दैट वो
तो हाँ बोलने के लिए कोई दूसरा हाँ बोल दिया तो भी चलता है. नाउ सी दैट अपार्ट, नाउ दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डेल्ट. एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ कमेंट भी मैं करूँ दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड कि किसी पे ऊपर कुछ मैंने बद्दा मजाक किया है. जो है सो है. इट इज़ नॉट दैट आई एम हिंदू दैट मीन्स हिंदू ग्रेटेस्ट है या कुछ है. आई एम नॉट ऑफ दैट कंसेप्ट. दैट कैन बी माई पर्सनल फीलिंग, बट माई पर्सनल फीलिंग्स आर नॉट टू बी गिवन इन लेक्चर. लेक्चर इज ऑलवेज एकेडमिक, और जो है वही पढ़ाना पड़ता है और वही सिखाना पड़ता है. सो नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंस्ट्रुएशन ऑफ दैट पार्ट. देन कमिंग टू हिंदू मैरिज दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अंडर द हिंदू लॉ पहले कंडीशन क्या है, दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी हिंदू. द बॉय एंड द गर्ल, द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दोनों क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी हिंदू बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन और बाय एडॉप्शन. एडॉप्शन रहेगा तो भी चलता है, कन्वर्जन रहेगा तो भी चलता है, एंड नहीं तो यू मस्ट बी बॉर्न हिंदू. सो फर्स्ट थिंग, बोथ द पार्टीज मस्ट बी हिंदू. अगर दोनों पार्टीज में से एक हिंदू नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर शादी नहीं हो सकती है. इट कैनॉट बी सोलमनाइज एज पर द हिंदू लॉ, बिकॉज बेसिक कंडीशन क्या है, दैट बोथ मस्ट बी हिंदू. तो अगर लड़का हिंदू है, लड़की हिंदू नहीं है और हिंदू पद्धति से शादी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, लड़की को कन्वर्जन करके हिंदू बनना पड़ेगा. सो शी विल हैव टू एक्सेप्ट हिंदू एज ए रिलीजन. या लड़का है उसको हिंदू होना पड़ेगा. या समझो एक हिंदू एक मुसलमान है, यूजुअली लव मैरिजेस में होता है. तो अगर एक पार्टी हिंदू है, समझो लड़का हिंदू है लड़की मुसलमान है, तो एक आइदर जो हिंदू है वो मुसलमान बन जाओ और निकाह कर लो, या तो फिर जो मुसलमान है वो कन्वर्ट होके हिंदू बन जाओ और हिंदू शादी कर लो. देयर इज़ अ वे आउट. कन्वर्जन अगर नहीं करना है और दोनों पार्टीज को अपना अपना रिलीजियस स्टेटस मेंटेन करना है, देयर इज येट अनदर वे बाय विच द पार्टीज कैन गेट मैरिड. मैरिज कैन बी डन अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट. अभी देखो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, और ये कन्फ्यूजन इवन लॉयर्स में भी है. वो बोलते हैं ना, अरे तो त्याचं लग्न झालं, उसका शादी हो गई, उसने कोर्ट मैरिज किया. भाई लोग और बहन लोग, कोर्ट मैरिज नहीं होता है. कोर्ट को कुछ काम धंधा नहीं है लोगों की शादी करते बैठने के लिए. कोर्ट को तो डिवोर्स का काम करवाना है. कोर्ट को तो इतने सारे डिवोर्स चलाने पड़ते हैं. और सी आज का रेट आप देखो, अगर 10 शादी हो जाती है उसमें से अगर या सपोज 10 मैरिजेस आर डन, 10 शादियाँ हो गई, उसमें से अगर मुश्किल से 5 या 6 ऐसी शादियाँ हैं जो बराबर से रहती है, टिकती है और लास्ट तक जाती है. सो एटलीस्ट हाफ ऑफ द मैरिजेस इफ़ वी सी, अगर 50% मैरिजेस है वो डिवोर्स में एंड हो रहे हैं, और उसमें भी जो लव मैरिजेस है, घर से बिना बोले भाग के शादी की हुई है, जिद से शादी की हुई है, देन आउट ऑफ 10 मैरिजेस एटलीस्ट 7 मैरिजेस आर एंडिंग इन डिवोर्स. सी बेसिक आज के सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है दैट पीपल डोंट हैव पेशेंस. सी एक चीज़ आप समझ लो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, नॉट कंसर्न विथ योर स्टडी एज सच. लेकिन देखो क्या होता है ना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन के घूमना फिरना बहुत आसान होता है. जेब में माल है तो ताल है, तो पैसे उड़ाओ. अगर लड़की के पास पैसे तो वो भी उड़ा सकती है, लड़के के पास पैसा तो वो भी उड़ा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, सी अभी आप लोग मिलने जाते हो एक दूसरे के लिए, या कॉलेज में आपका समझो अफेयर चालू हुआ है, या कहीं वर्क प्लेस में, या कहीं बाहर आप मिले हो आउट ऑफ फ्रेंड्स या कुछ भी है. आजकल तो फेसबुक एक नया चीज़ हो गया है, एक्चुअली पुराना है, लेकिन फेसबुक एक नया चीज़ हो गया कि इंटरनेट पे लोग मिलके शादियाँ हो रहे हो ना, इंटरनेट मैरिजेस. यहाँ पे क्या होता है कि अपीयरेंस, फिक्स अपीयरेंस होता है. वो लड़का दिखने में कितना अच्छा है, वाह कितना हैंडसम है, लड़का क्या बोलता है, अरे लड़की देखो कितनी सुंदर है, एकदम सॉलिड है, एकदम आपको समझने के लैंग्वेज में बोलो तो क्या सामान है, क्या फटाका है, कुछ भी वर्ड यूज़ करो वो चलेगा आपके हिसाब से. लेकिन वही लड़की सुबह जब नींद में से उठेगी तो कैसे दिखेगी, बिना मेकअप, बिना बाल बनाए. यू वोंट बी एबल टू सी हर, क्योंकि वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. या लड़का दिखने में इतना हैंडसम है, यार बाल देखो कितने मस्त है, मेरे तो खैर बाल उड़ गए, लेकिन समझो बहुत एवढा हँडसम है, असा दिसतो तसा दिसतो, दिखने में एकदम छावा है, ये है वो है. लेकिन सुबह उसको नींद में से देखो, घर में जाओ तो वही जो आपके सामने है, आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, कितनी अच्छी ड्रेस है, हर अपीयरेंस इज़ वेरी गुड, ये वो. घर में जाके देखो सीधा एकदम चड्डी में दिखाई देगा, या लुंगी पहनता होगा, या लहंगा पहनता होगा, या लड़की होगी तो एकदम गाउन में ही दिखाएगी, या टी शर्ट और पैंट में दिखेगी.
So ये सब चीज़ें होती है, तो आप जब शादी करके एक साथ रहते हो तो वो सब चीज़ें निकल जाती है. एंड देन व्हाट मैटर्स इज कि एक दूसरे के साथ रहना है. सी लव अफेयर में रहता है ना, रोज मिलते जो बोलते अरे आई लव यू ये वो, लेकिन एक बार शादी हो गई आई लव यू सब बाजू में रह जाता है. नाउ सी लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, अगर ये बात सुनेगी तो मेरी बीवी भी भड़क जाएगी, माई वाइफ विल ऑल्सो गेट एंग्री विथ मी, बाइको पण भड़केल. सी लेट मी टेल यू वन थिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस and as a marriage counselor, as a lawyer, as a teacher, as a person, marriage is like a chewing gum. chewing gum मालूम है क्या होता है? chewing gum खाओ, मुंह में डालो तो फ्लेवर का आता है, अलग अलग फ्लेवर का आता है ना, बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, वो इसके लिए भी आता है, वाइटनर्स वगैरह भी आता है अलग अलग. शुरू में मुंह में डालो तो क्या होता है? टेस्टी रहता है, उसमें बहुत अच्छा किस्म का फ्लेवर होता है, लेकिन चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, देन व्हाट हैपन्स आफ्टर सर्टन पैसेज ऑफ टाइम, अगर वही च्युइंगम आप समझो एक आधा घंटा चबा लो तो बाद में क्या हो जाएगा? वो एक रबर का टुकड़ा मुंह में रह जाएगा जो आप याम 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 करके खा रहे हो, जिसकी ना टेस्ट है ना कुछ है. तो उसके बाद में आप क्या करते हो? उसको थूक देते हो. उसको थूकने का भी एक अच्छा तरीका है, उसको प्रॉपर पेपर में डाल के डिस्पोज करो. लोग कहीं कुछ भी कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप च्युइंगम थूक सकते हो. शादी ऐसा गम है जो एक बार खा लिया तो उसको थूक भी नहीं सकते हो. दैट बट दिस इज जस्ट अ जोक. लेकिन देखो शादी में नयापन नहीं रहता है, सो इनिशियली एक रहता है, एंड देन सी व्हाट हैपेंस व्हेन इनिशियली मैरिज हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रहता है फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन होता है. लेकिन कालांतर के बाद एक ठराविक वर्ष झाली शादी को, 5 साल 10 साल हो गया, तो वो जो है ना वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो इनोवेटिवनेस उसमें से निकल जाता है, इट बिकम्स मोनोटोनस. तो वही गर्लफ्रेंड जो बहुत दिखने में अच्छी थी, यू नो बहुत अट्रैक्टिव थी, मेरा मन उसकी तरफ जाता है, आई एम अट्रैक्टेड दिस दैट, उसके बाद में वही जो लड़की सुंदर थी वो बंदर लगने लगती है. और लड़के का भी वही होता है, जो लड़की देवी दिखती है वो बाद में भूत दिखने लगती है, एंड देन प्रॉब्लम हो जाता है. एंड यूजुअली इफ यू सी नाउअडेज द फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज लाइक एनीथिंग. लेकिन एक टाइम था ना, जब भी मतलब दिस इज जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन that usually you know marriage is safe for first 5 years. 5 साल से 8 साल का पैच अगर निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये मेरी तरफ उतना ध्यान नहीं देता है, माझ्या नवऱ्याचं माझ्यावर प्रेमच नाही राहिलं, मेरा पति मुझसे प्यारे नहीं करता, आजकल तो मेरी कुछ कदर ही नहीं होती है, एंड देन प्रॉब्लम चालू हो जाता है. मेरी बीवी को मेरा फिक्र ही नहीं है. शुरू में बहुत फिक्र रखती थी, बहुत संभालती थी, बहुत प्यार था, उसको बहुत कंसर्न थी, अभी वो कंसर्न नहीं रही, सो वहाँ से कंप्लेंट्स चालू हो जाते हैं. एंड देन 5 से 8 साल जो है ना वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है पैच. देन 8 साल के बाद में अगर 8 साल तक बच्चा हो गया है तो भी शायद कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ है उतने पीरियड में, देन अगेन द मैरिज इज स्लाइटली एट रिस्क. एंड देन यूजुअली आफ्टर 12-14 ईयर्स वी सी दैट थिंग्स गो रॉन्ग एंड हो जाता है. लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है, कितनी सारी शादियाँ देखो, दे आर वेटिंग जस्ट फॉर दैट पीरियड. अभी एक चीज़ आपको खाली बोल के रखता हूँ, बाद में जब भी हम लोग डिवोर्स की तरफ जाएंगे तभी उसको डील करेंगे, दैट वंस अ हिंदू मैरिज इज सॉल्मनाइज, फ्रॉम द डेट ऑफ सॉल्मनाइजेशन कम से कम 1 साल के लिए आप कोर्ट में वो शादी डिसॉल्व करने के लिए पिटिशन नहीं कर सकते हो फॉर डिवोर्स. तो देयर मस्ट बी मिनिमम 1 ईयर कूलिंग पीरियड. उसके पहले नॉट कूलिंग पीरियड, दैट इज द स्टैट्यूटरी पीरियड, दैट अनलेस एंड अनटिल 1 साल हो गया है आप डिवोर्स के लिए फाइल ही नहीं कर सकते हो. दिस इज द कंडीशन, बिकॉज नहीं तो क्या हो जाएगा, आज शादी कल डिवोर्स, 1 महीने के अंदर डिवोर्स के लिए पब्लिक भाग रहा है. सो पीपल में थोड़ा सा स्थिरता आने के लिए फिर भी पीपल डिवोर्स ले रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, सब अलग बात है, बट दिस इज द थिंग. देन सी बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद टॉपिक, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट वी हैव टू कवर अनकोडिफाइड लॉ ऑल्सो, जिसमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आएंगे, देन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आएगा, एंड सर्टन थिंग्स विल कम. उसको भी हमको डील करना है अलग से. लेकिन फॉर द टाइमिंग वी आर स्टार्टिंग विथ हिंदू मैरिज एक्ट. अभी नाउ सी, ये तो पहले क्लियर हो गया. नाउ सी, दो हिंदू मैरिज का एक चीज़ समझ लो, वो मैं बोल रहा था, आई जस्ट स्किप्ड इट एंड वेंट अहेड, दैट हिंदू मैरिज एक्ट 2 तरीके से हो सकता है. रजिस्टर्ड भी हो सकता है और हिंदू धार्मिक या वैदिक पद्धति से, या कोई और आर्य समाज होगा या कोई भी होगा, उसके रिचुअल्स और सेरेमनीज के हिसाब से शादी हो जाएगी. एक पंडित आता है, दोनों की शादी कराता है, एंड देन सब्सिक्वेंटली आफ्टर दिस मैरिज इज सॉल्वनाइज,
परसुएंट टू सॉलोमनाइजेशन ऑफ द मैरिज बाद में शादी रजिस्टर की जाती है. सो एक बार शादी संपन्न हो जाती है, विवाह हो गया, एंड देन बोथ द पार्टीज विल गो टू द रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर ऑफ मैरिजेस, एंड दे विल अप्लाई दैट हमारी शादी हो चुकी है एंड हमारी शादी रजिस्टर कर लो. जहाँ पे शादी रजिस्टर्ड पद्धत से हो रही है, रजिस्टर्ड पद्धत क्या होता है? नो सेरेमनीज आर रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड. दिस मैरिज इज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड नॉट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर शादी संपन्न करने के लिए द पार्टीज हैव टू अंडरगो सर्टन सेरेमनीज, कुछ विधि करायला लागतात, कुछ रिचुअल्स होते जो करने पड़ते हैं. देन डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पद्धत है, धार्मिक पद्धत है लॉन्ग कट वाली या शॉर्टकट वाली, वैदिक पद्धत है या आर्य समाज की पद्धत है या कोई और डिफरेंट ये है, उसमें सर्टन समझो टोटल 10 रिचुअल्स है तो उसमें से 5 रिचुअल्स रहेंगे. लेकिन वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन वी डू सेरेमनीज ऑफ मैरिज के कौन सा शादी हो गई ये कैसे पता चलता है? तो दैट कैन बी डन ओनली बाय वन सेरेमनी जिसको सप्तपदी बोलते हैं. शादी अभी देखो पिक्चर में दिखाते हैं ना, खून भरी मांग, तो हीरो आता है खुद की उंगली में एक ऐसा चाकू लगाता है, खून निकालता है और हीरोइन के मांग में डाल देता है, शादी हो गई. या कभी कभी देखते हो ना, लड़का गया लड़की के गले में माल डाल दिया, लड़की ने गले में माला डाल दी, हार पहना दिए दूसरे को, शादी हो गई. ऐसे शादी नहीं होती है. दीज आर ओनली सेरेमनीज विच आर बाय द वे. लेकिन मैंडेटरी कौन सी है कि अगर पार्टीज आर गवर्न बाय कस्टम्स जहाँ पे उनको सप्तपदी करना कंपलसरी है, इन दैट केस सप्तपदी किए बगैर शादी संपन्न नहीं होती. बाकी की चीज़ें करो या मत करो वो ऑप्शनल है, लेकिन जब तक सप्तपदी नहीं होगा मैरिज इज नॉट सॉल्मनाइज. सो ये 2 चीज़ें पहले समझ लो. अगर कोई बोलता है अरे त्यांनी कोर्ट मैरिज केलं, वो कोर्ट मैरिज नहीं होता है. कोई भी कोर्ट में शादी नहीं होती है. कोर्ट में खाली शादी तोड़ने के लिए लोग जाते हैं. सो अगर कोई बोलता है की अरे त्यांनी रजिस्टर्ड लग्न केलं किंवा त्यांनी कोर्ट मैरिज केलं, तो समझ लो कि दे हैव मैरिड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट एंड नॉट हिंदू मैरिज एक्ट. स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, यू टू गो एक ही रजिस्टर एक ही है. मतलब आप हिंदू मैरिज कर लो, सॉल्मनाइज कर लो, बाद में रजिस्टर करने को जाओ या सीधा रजिस्टर के पास जाओ, दोनों का रजिस्टर एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है. दैट इज अंडर डिफरेंट लॉज. सो अगर आप बोलते हो कि रजिस्टर लग्न करो यार, एकदम सिंपल, न तामझाम न दोनों तरफ के कोई ये मानपान, वो कम हो गया वो ज़्यादा हो गया, हमारे रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार, कुछ लफड़ा नहीं. खाली ज़रूरत क्या है, एक लड़के की जो शादी करना चाहता है, एक लड़की की जो शादी करना चाहता है, और देर आर सर्टन कंडीशंस दैट बोथ मस्ट बी एडल्ट, बोथ मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज. और दोनों को क्या करना पड़ता है, जाके एक अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्मल एप्लीकेशन रहता है, वो रजिस्टर के पास ऑफिस में मिलता है, जाके अप्लाई करना पड़ता है दैट ए एंड बी दे बोथ इंटेंड टू मैरी. तो 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है. सो यू हैव टू गिव नोटिस. देन उसके बाद में नोटिस है जो वहीं पे ऑफिस के बाहर दिया जाता है कि बाबा ए हैज़ अप्लाइड या फॉर्म भरा है उसने बी से शादी करने के लिए. 1 महीने का कूलिंग एक टाइम रहता है एंड देन डेट विल बी गिवन टू यू. उस डेट को आना है. आते वक्त लड़का और लड़की दोनों को अपने साथ में विटनेसेस लाने हैं, अपने अपने तरफ से 2 विटनेसेस, और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करने पड़ते हैं और ओरिजिनल कैरी करने पड़ते हैं टू शो दैट यू आर अ मेजर. दैट्स इट. और उसके बाद में वो रजिस्ट्रार के सामने जाओ, वो तारीख को समझो, उन्होंने 1 महीने के बाद की तारीख की, तो समझो आज आप रजिस्टर करते हो, चलो कल 1 अगस्त है, अभी 1 अगस्त आ रहा है, तो 1 अगस्त को अगर आपने रजिस्टर किया तो से फॉर एग्जांपल आपको सितंबर का कोई तारीख मिल गया, तो उस तारीख को आपको ऑफिस में जाना है, जब भी आपको टाइम दिया हुआ है तभी वो पूछेगा कि अरे हाँ आपने फॉर्म भरा था, दोनों को रजिस्टर पे साइन करवाएगा. द मोमेंट यू बोथ साइन यू एक्सेप्ट ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ एंड नो सेरेमनीज आर रिक्वायर्ड. किसी किस्म का विधी, किसी किस्म के सोपस्कार काहीही त्याच्यात लागत नाही. सो सिंपल साइन करो रजिस्टर के ऊपर, हस्बैंड ने साइन किया, वाइफ ने किया, 2 विटनेसेस उन्होंने साइन कर दिया, विवाह संपन्न हो गया. दैट इज अ रजिस्टर्ड मैरिज. नाउ दिस इज मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट. लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, नाउ स्पेशल मैरिज एक्ट में इतना ही कंडीशन है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए. वहाँ पे पार्टीज का रिलीजन क्या है ये वो दैट डज नॉट मैटर. सो ऐसा हो सकता है ना कि मैं किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता हूँ या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन दोनों को अपना अपना रिलीजन रिटेन करता है. आई हैव नो प्रॉब्लम विथ माई वाइफ बीइंग अ हिंदू और मुस्लिम एंड आई डोंट वांट टू कन्वर्ट हर, आई वांट हर टू कंटिन्यू हर रिलीजन. तो वो एक रास्ता है, क्योंकि ये चीज़ था कि अगर समझो तो समझो अलग अलग रिलीजन के तो एक चीज़ है,
या तो आपको क्रिश्चियन कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो फिर आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, या तो आपको हिंदू होना पड़ेगा. सो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है. Being Indian citizen is sufficient, and that can be done under the Special Marriage Act. That we will see later. Right now we are on the Hindu Marriage Act. So now see, Hindu Marriage Act में क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट में दो तरीका है. एक मैंने बताया आपको कि तरीका आप कोई भी अपनाओ, लेकिन आपको सर्टन सेरेमनीज करने हैं. नाउ सी, हिंदू मैरिज एक्ट कभी आया है, उसका नाम देखो, उसका रीड करो. आप लीगल लैंग्वेज सीख चुके हो. Hindu Marriage Act 1955. It means that this act was enacted and Hindu Marriage Act commenced in 1955. तो उसके पहले क्या था? हिंदू मैरिज एक्ट तो था नहीं, तो क्या करते थे? कुछ भी करते थे नहीं. वी वेर गवर्न बाय द ट्रेडिशनल लॉ एंड सर्टन चेंजेस आ गए. सो हिंदू मैरिज बिफोर 1955, दैट इज बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट, एंड अ हिंदू मैरिज आफ्टर 1955, दैट इज पोस्ट हिंदू मैरिज एक्ट, काफ़ी फ़र्क पड़ गया. क्या फ़र्क पड़ गया वो पहले देख लो. हाँ, वन मोर थिंग, आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग सर्टन पिक्चर्स जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हुए हैं, एंड बेरेटेक्स वो आपके पास है ही. देन अगेन वन वेरी यूजलेस क्वेश्चन एवरी ईयर आई फेस, जो स्टूडेंट्स इनएविटेबली पूछते हैं, सर बुक्स कौन सा लूँ, विच बुक शुड बी रेफर टू. जैसे कि आप लोग सच्ची में पढ़ते हो. अरे कुछ नहीं पढ़ते हो. एंड यू विल आस्क मी कौन सा लेना है, मैं बताऊँगा कि बाबा ये ले लो, वो ले लो. तो आइडियली हिंदू लॉ के लिए एक पारस दीवान का बुक बहुत अच्छा है, या कोई दूसरा भी ले लो, अधवा पब्लिकेशन का कौन सा, आई डोंट नो. देन बट यूजुअली व्हाट यू स्टूडेंट्स बाय, जाब वाला. तो जाब वाला ले लो, पढ़ो ना, बात खत्म. अजून एक आहेत आमचेच मित्र प्रोफेसर मोकल, उनके नोट्स बहुत फेमस है और बहुत बिकते हैं, तो लोग वो लेते हैं और उसके ऊपर से भी आपका पढ़ाई तो हो ही जाएगा. सो बाय एनी नोट्स, बाय एनी थिंग. सी, जो भी आपको कॉमेंट्रीज देखनी है, बुक्स देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये सेमिस्टर सिस्टम इतना होपलेस है कि यू हार्डली गेट एनी टाइम. कॉलेज चालू हो गया की वेद लागतात, अरे बापरे आता आमची एक्झाम आली, आता आम्हाला एक्झामला अभ्यास करायला पाहिजे. एंड देन जब एग्जाम नज़दीक आते तो स्टूडेंट स्टॉप अटेंडिंग लेक्चर. अरे अभी तो एग्जाम आ गया, अभी लेक्चर को जाके क्या फ़ायदा. तो क्या करते हो तुम लोग, बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हो. अरे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, मग वर्गात आम्ही क्या गोट्या खेळायला शिकवतो का. इधर क्या होती है, पढ़ाई होती है ना. लेकिन आप नहीं बैठते हो. अगर बैठते हो तो आपका ही लोड ईजी हो जाता है. आपको पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या है, वो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है. एक्सपीरियंस पर्सन लाइक मी, एक्सपीरियंस स्टूडेंट लाइक मी, यूजुअली ऑलवेज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. इवन इफ आई एम लेक्चरिंग टू यू, आई एम टीचिंग, इवन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ. मैं भी दिन रात पढ़ते रहता हूँ. देर आर सो मेनी न्यू थिंग्स दैट यू कम, एंड वंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ. वो मॉर्टगेज आपको इसी सेमिस्टर में होगा ना, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें एक लीगल कंसेप्ट है, वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज. इट इज़ लाइक दैट. Once a law student, you are always a law student. Even if you are a judge, even if you are a pleader, even if you are a government lawyer, even if you are a defense lawyer, या आप इवन प्राइवेट लॉयर हो, आपको पढ़ते तो रहना है. सो वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट. सो दैट बिकम्स ईजी. तो एक्चुअली लेक्चर अटेंड करोगे और समझ के लोगे कंसेप्ट, तो आपको पढ़ाई के लिए रेडी करने के लिए भी एक्चुअली आसानी हो जाएगी, लेकिन बहुत कम लोग वो करते हैं. एनीवेज दैट अपार्ट. नाउ सी, फर्स्ट अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट वी हैव गॉन इनटू. Refer to page number 1 which I have uploaded. Changes of the Hindu Marriage Act prior to 1955 क्या था, कोई एक्ट था ही नहीं. Nothing was governing Hindu except the traditional Hindu law, and there were certain things or practices which were in place or which were not specifically banned. अभी देख लो क्या क्या चेंज हो गया. पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स. ये जो डिवोर्स लिया जाता है, जो तलाक, मराठीत काय म्हणतात, घटस्फोट. सो ये जो लिया जाता है, काही काही लोक त्याला काडीमोड पण म्हणतात, ते नंतर सांगतो. सी, इसमें क्या होता है, ये कंसेप्ट वॉज नॉट देयर अंडर द ट्रेडिशनल हिंदू लॉ. डिवोर्स लिया नहीं जाता था. सो फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स वॉज एलियन. इट वॉज नॉट नोन बिफोर द मैरिज एक्ट. देन सेकेंड पॉइंट, marriage, a Hindu marriage under the traditional law was an eternal union. What do you understand by eternal union? एक पवित्र रिश्ता, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, ऐसे बोलते हैं ना, जन्मों जन्मों का रिश्ता, सातों जन्मों तक. वो कसमे वादे देखा है क्या नहीं, पिक्चर में सब फिल्मीगिरी देखी है. वो फिल्मीगिरी भी इसी क्या है, कंसेप्ट से ही आए हुए. तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट साता जन्माच्या गोष्टी, या सातों जन्म तक, 7 जन्म तक. वो एक गाना भी है उसके ऊपर आया हुआ, छोड़ेंगे ना हम तेरा सातों साथी मरते दम तक. दोनों बोलता है मरते दम तक नहीं, अगले जन्म तक. अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक.
सो हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू कंसेप्ट और हिंदू स्पिरिचुअलिटी 7 जन्म की बात करती है. सो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता था. एक बार शादी हो गई तो अगले जन्म में भी सेम पार्टीज बिकम हस्बैंड एंड वाइफ. लेकिन अनलकीली दिस पार्ट वॉज ओनली फोर्स अपॉन द विमेन. I'll clarify that. The next point, polygamy. What is polygamy? Multiple marriages. अभी हिंदू मुसलमान होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? 4 शादियां कर सकते हो अगर उस हिसाब से देखो तो. So now see, polygamy means what? A practice wherein one person would marry more than one spouse. In the sense that एक आदमी उसने 2 या 3 शादियां कर ली है. देन दूसरा एक प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं पॉलीएंड्री. पॉलीगमी में क्या होता है? एक हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स. और पॉलीएंड्री में क्या होता है? एग्जैक्टली वाइस वर्सा, वन वाइफ एंड मेनी हस्बैंड. जिसका एक ही एग्जांपल आपको मालूम होगा, मुझे भी एक ही एग्जांपल मालूम है और मैं कम से कम 10 साल से पेपर असेस कर रहा हूँ. उसमें सब लोग वही एग्जांपल लिखते हैं. पांचाली, द्रौपदी, महाभारत की कैरेक्टर, जहाँ पे शी वॉज वेडेड टू 5 पांडवाज. वो उसको एक्चुअली शाप था, क्या था वो अलग छोड़ दो, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. सो थिंग इज व्हाट, पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री ये आज भी प्रैक्टिस में है. लेकिन पॉलीगमी was not specifically banned before 1955. Therefore, even a Hindu person could marry more than one wife before 1955. लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद में it is the first condition that no spouse, that no person who is getting married will have a spouse living. This is applicable to both husband as well as wife. अगर मैं पति हूँ और मेरी पत्नी जिंदा है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ. और अगर मैं पत्नी हूँ और मेरा पति जिंदा है तो भी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर हम लोग साथ में कोहैबिट करते हैं भी या नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं भी या नहीं, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. शादी हुई है या नहीं हुई है तो नहीं हो सकता. दैट इज कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज. वंस द मैरिज इज सॉल्मनाइज, विवाह संपन्न हो गया, देन लेट द पार्टीज स्टे टुगेदर, कोहैबिट विद ईच अदर और नॉट. लेकिन अगर वो अलग अलग अपने घर पे रह रहे हैं एंड डिवोर्स हैज नॉट बीन टेकन, द मैरिज विल रिमेन इन सब्सिस्टेंस. वो मैरिज का अस्तित्व, वो शादी का अस्तित्व फिर भी रहेगा टिल एटलीस्ट आइदर ऑफ द स्पाउस हैज डाइड. दिस इज क्लियर? ओके. सो प्रायर टू 1955 पॉलीगमी वॉज नॉट बैंड. देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि परमिसिबल था. हिंदूज़ में एक से ज़्यादा शादियाँ की भी जाती थी. माइथोलॉजिकल और जो पुराने ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स है वो भी ले लो. लेकिन दैट थिंग वॉज नेवर ग्लोरीफाइड. उसको कभी बढ़ावा दिया नहीं गया. जैसे अभी देखो, अगेन लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, इवन इफ आई से समथिंग इन अ जोकिंग मैनर, वो किसी भी धर्म या किसी के ऊपर कोई पर्सनल कोई स्टूडेंट वो कमेंट नहीं लेगा. जैसा मुस्लिम आदमी है ना, छाती ठोक के बोल सकता है, अरे मैंने 3 शादी किया, मेरी 3 बीवियां हैं. ऐसा हिंदू आदमी नहीं बोल सकता है. अगर उसी टाइम पे भी जब डबल मैरिज परमिसिबल था, वो टाइम पे भी लोग बोलते थे अरे त्याची 2 लग्न झाली आहेत, उसने 2 शादियां की है, 2 बीवियां रखा हुआ है. सो दैट वॉज लुक डाउन अपॉन एंड इट वॉज नेवर ग्लोरीफाइड. लेकिन उसके ऊपर बैन नहीं था. इट वॉज नॉट प्रोहिबिटेड. एंड यू नो लीगल रूल, लीगल लैंग्वेज आपका हुआ है, इफ एनीथिंग इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड इट इज परमिटेड. एक रूल है, कंस्ट्रक्शन लोगों ने अपने हिसाब से करके रखा हुआ है. देन नेक्स्ट पॉइंट, remarriage of widows was banned or impermissible. There was a complete ban on remarriage of widows. Now see, ऊपर का पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2, मैरिज वॉज एन एटर्नल यूनियन, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता. लेकिन विडोज को शादी करने की परमिशन नहीं थी. विडोज मीन्स कौन? विधवा जो बेवा हो चुकी है, जिसका हस्बैंड मर चुका है. दीज वीमेन्स वर नॉट अलाउड टू रीमैरी. लेकिन अगर किसी हस्बैंड की वाइफ मर गई तो 6 महीने के अंदर ही वो दूसरी शादी कर सकता है. सो सी सर्टन रूल्स वेयर मेन सेंट्रिक, पुरुष प्रधान संस्कृति हमेशा हमारे कल्चर में रही है. सो थिंग्स वर ट्विस्टेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ मैन एंड थिंग्स जस्ट वेंट ऑन. सो अगर बीवी मर गई तो दूसरी बीवी आदमी बेशक कर सकता है, लेकिन अगर पति मर गया तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती है. देन सर्टन पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राव एंड सर्टन सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया. एंड द बैन वॉज लिफ्टेड
and now remarriages of widows is permitted. So these are the certain changes which were made to the or which were effectuated, या जो इफेक्ट आ गया है. लेट मी अगेन वाइंड अप. बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट क्या था और बाद में क्या था. आफ्टर क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स वाज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, अ मैरिज बिफोर 1955 वाज एटर्नल यूनियन, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता. सो वो कंसेप्ट था कि अगर पति मर गया ना तो पत्नी को बायस रहना चाहिए, वो मरे हुए पति के साथ में भी उसको ईमानदार रहना चाहिए. शी मस्ट नॉट हैव रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन एंड शी मस्ट डाई एज विडो ऑफ दैट पर्सन हु हैज डाइड. तो अगर वो मर जाएगी तो ऊपर उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा. तो जैसे कि वो पति ऊपर से स्वर्ग में खड़ा रहने वाला है, अरे वाह माझी बायको पण आली का, तो हातात वो हार लेके उसका वेलकम करेगा. ऐसे दीज आर द कंसेप्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन पॉलीगमी आफ्टर 1955 स्पेसिफिकली बैंड. That is also one of the most important conditions for a valid Hindu marriage that we will see in section 5 जब भी शादी का टॉपिक करेंगे तभी. And remarriage of widows was banned. Okay. Now, see, you are aware that recently on if I am not subject to correction, 5th August 2019 को ही there was a constitutional amendment by which Article 370 has been abrogated. The special status given to the state of Jammu and Kashmir has been removed and now it is an integral part of India. पहले भी था लेकिन अभी है. So usually you will always see कोई भी एक्ट का आप जब भी खोलते हो. Now see Hindu marriage act आप ओपन करो. See subsection 1 short title and extent. Read section 1. This act may be called Hindu Marriage Act 1955. Subsection 2, it extends to whole of India except state of Jammu and Kashmir and applies to Hindus domiciled in territories to which act extends and which are outside the territories. वो for the moment भूल जाओ. लेकिन ये जो है ना except state of Jammu and Kashmir, this you find only because Article 370 was in force when this act was enacted in the parliament. अभी वो निकल चुका है. So this is not applicable now. It is applicable to whole of India including state of Jammu and Kashmir. This is clear? Okay. Then see Hindu Marriage Act application section 2. किस किस को applicable होगा? Hindu succession, Hindu laws, Hindu enacted laws. Now, who are said to be Hindus? Hindus include even Buddhists, Jains, Sikhs. Read section 2. Application of the act. This act applies A. to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat, or a follower of Brahmo Prarthana or Arya Samaj. Then subsection B, to any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion. And subsection 3, to any other person domiciled in territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved. वो unless भूल जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा. भूल जाओ मीन्स डोंट अप्लाई योर माइंड राइट नाउ. भूल जाओ बोला तो भूल मत जाना. सो आइडियली किस किस को एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट? फर्स्टली टू हिंदूज एंड टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग लिंगायत, वैष्णव, प्रार्थना समाज और आर्य समाज. देन टू एनी पर्सन हु इज a Buddhist, Jain or Sikh by religion. So Buddhist, Jain, Sikh, Arya Samaj, any other form of Hindu religion are also included amongst Hindus. And all the Hindu laws, including Hindu Marriage Act, then Hindu Succession Act, then Hindu Minority and Guardianship Act, Hindu Adoptions and Minority Act, all will Hindu Adoptions and Maintenance Act, all acts will apply equally to all these persons except parties who are Muslims, Christians, Jews and Parsis.
देन कभी कभी कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि एक फादर हिंदू है और मदर मुस्लिम है. अभी इसमें क्या हो गया, सी दिस थिंग्स यू विल ऑलवेज सी इन सिनेमा. व्हाट इज सिनेमा? सिनेमा इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. कभी देखा होगा ना, अरे पिताजी क्रिश्चियन थे, लड़की ने बिना इजाज़त शादी की, एंड देन दोनों का डेथ हो गया. आफ्टर एक बच्चा हो गया, एक 7-8 साल उनका समझो मैरिड लाइफ रहा, एंड सडनली इन एक्सीडेंट दे बोथ डाई, एंड द चाइल्ड नाउ सर्वाइव्स द पेरेंट्स. तो अभी क्या हो गया, वो लड़के का भी कोई था नहीं, लड़का क्रिश्चियन था लेकिन लड़की हिंदू है और उसका नाना जिंदा है. अभी देखो लड़की मर गई ठीक है, लेकिन लड़की के बच्चे को तो कोई ऐसा फेंक तो नहीं देगा. सो क्या होगा, उसको बच्चे को पालना पड़ेगा. तो अगर वो बच्चा वो एक्चुअली जन्म से क्रिश्चियन है, क्योंकि उसका यूजुअली पैटर्निटी को फॉलो करेगा. अगर माँ हिंदू है और बाप मुसलमान है तो लड़का मुसलमान समझा जाएगा. लेकिन अगर वो माँ उस बच्चे को हिंदू संस्कार देती है और हिंदू कल्चर में उसको बड़ा करती है, देन डिस्पाइट द फैक्ट दैट हीज फादर वॉज अ मुस्लिम, दैट चाइल्ड विल बी अंडरस्टूड टू बी अ हिंदू. फॉर द टाइमिंग ये सब भूल जाओ, क्योंकि कन्फ्यूजन आपका मन में अननेसेसरीली क्रिएट करेगा. सो इवन दोज आर कंस्ट्रूड टू बी हिंदू. तो सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट सब से एक्सप्लेनेशन एक बार ठीक से पढ़ लो, आगे के सब सेक्शन भी पढ़ लो. एनी डिफिकल्टी, क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम. देन सब सेक्शन 3 आर डेफिनेशन. तो डेफिनेशन बराबर से बाय हार्ट करके समझ लो. वी विल बी डीलिंग विद देम सर्टन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. पूरा डेफिनेशन करना तो पॉसिबल नहीं है, बट वी विल बी डीलिंग विद सर्टन डेफिनेशन विच आर रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सो सेक्शन 3 के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. देन आई डायरेक्टली गो टू सेक्शन 4. सेक्शन 3 में भी आपको कौन सा डेफिनेशन पढ़ना है मैं आपको बोलता हूँ. ए, custom and usage. Then C, full blood, half blood. D, uterine blood. Then F, Sapinda relationship. G, that is degrees of prohibited relationship. अब ये सपिंडा और जो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स है, दैट वी विल डील विद सेक्शन 5 जब भी हमको कंडीशंस ऑफ और व्हाट वी कैन से इसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज करना है. तो सेक्शन 5 जब भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तभी वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेशंस. इन द मीनवाइल जस्ट लेट अस टच फॉर अ मोमेंट सेक्शन 3 सब सेक्शन सी, फुल ब्लड, हाफ ब्लड. सी फुल ब्लड म्हणजे काय, सख्खा भाऊ, सगा भाई, रियल ब्रदर, वेअर द चाइल्ड इज ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम फादर एंड मदर. तो अगर दो बच्चे हैं ए और बी और दोनों का माँ भी एक है और दोनों का बाप भी एक है, सो दे विल बिकम रियल ब्रदर. सो दैट इज रिलेशनशिप बाय फुल ब्लड. देन रिलेशनशिप बाय हाफ ब्लड, जहाँ पे दोनों का पिताजी एक ही है, एंसेस्टर सेम है, लेकिन एंसेस्ट्रेस या जन्म देने वाली माँ अलग है. सो पहले शादी हुई, मेरी माँ थी वो गुजर गई, दूसरी शादी हो गई, दूसरी माँ से और एक बच्चा हो गया, तो माझा काय झाला, सावत्र भाऊ झाला, मेरा सौतेला भाई हो गया. सो सौतेला भाई, सावत्र भाऊ, step brother is half blood. And there is one more concept under subsection D, uterine blood, where ancestress is the same. माँ एक ही है, मदर जन्म देने वाली जन्मदाती एक ही है, लेकिन जन्मदाता अलग अलग है. So suppose the wife becomes a widow and then she gets remarried. तो पहले शादी के पहले एक बच्चा था, बाद में एक बच्चा हो गया, वो दोनों सगे सौतेले भाई हो गए. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रीन ब्लड. सो माँ एक ही है लेकिन बाप अलग अलग है. हाफ ब्लड, बाप अलग अलग, बाप एक ही है, माँ अलग अलग है. एंड फुल ब्लड, माँ बाप एक ही है. कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस उसमें नहीं है. देन सपिंडा एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आई विल कवर विद सेक्शन 5. Now for a moment read section 4, overriding effect of the act. Read section 4. Save as otherwise expressly provided in this act. A, any text, rule or interpretation of Hindu law or any other custom or usage as a part of law in force immediately before commencement of this act shall cease to have effect
with respect to any matter for which provision is made in this act. Again I repeat, please, when you are attending this lecture or any lecture of any codified law, always have the bare text with you. Always buy the bare text. कॉमेंट्री आपको जो भी चाहिए वो लाइब्रेरी में रेफरेंस के लिए है, और बुक लेते हो जॉब वाले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन रीड सबसेक्शन बी, क्लॉज बी. एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली before commencement of this act shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any provisions contained in this act. वर्डिंग्स आप देख लो, समझ लो. कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे फिर से पूछो. एक सिंपल चीज समझ लो, दिस एक्ट हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर प्रोविजन. सो सी देखो, दो ही ज़्यादा, उसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है. एक है कोडिफाइड लॉ और दूसरा है अनकोडिफाइड लॉ. नाउ सी, अनकोडिफाइड लॉ में एक्स बताया है, लेकिन कोडिफाइड वाई में वाई बताया है. कौन सा अप्लाई होगा? कोडिफाइड लॉ. सो वाई विल प्रिवेल अपॉन एक्स, दैट इज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट. सो एनीथिंग कॉन्ट्ररी, एनीथिंग डिफरेंट, एनीथिंग अदर, बाय द वे, जो अनकोडिफाइड लॉ में भी कहा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. व्हाट विल बी एप्लीकेबल इज दिस एक्ट, एंड दिस अप्लाइज टू द एंटायर कोडिफाइड लॉ. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोडिफाइड क्या क्या हुआ है? हिंदू अनकोडिफाइड लॉ बहुत वास्ट है. क्या क्या कोडिफाई हुआ है? ओनली मैरिज, सक्सेशन, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. यही खाली कोडिफाई हुआ है, बाकी का अनकोडिफाइड है. सो इवन टुडे देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर अनकोडिफाइड. जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी, या उसको मराठीत वडिलोपार्जित म्हणतात, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से आ रहे हैं, तो उसका प्रोविजंस आर डिफरेंट दैट वी सी व्हेन वी डू द अनकोडिफाइड लॉ. कोडिफाइड लॉ समझ लो, अनकोडिफाइड लॉ समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ करने जाओगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा और सब प्रॉब्लम हो जाएगा. सो सेक्शन 4 समझ लो, दैट हिंदू मैरिज एक्ट और एनी अदर कोडिफाइड लॉ, या एक समझ लो दैट कोडिफाइड लॉ हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट. तो अगर दो अलग अलग चीज़ें, एक्स बोलता है अनकोडिफाइड लॉ एंड वाई बोलता है कोडिफाइड लॉ, व्हाट विल अप्लाई? करेक्ट, वाई. So codified laws will always have a overriding effect, it will prevail. Then section 5 for a moment भूल जाओ मीन्स बाद में करेंगे. Then section 6 देखो, guardianship in marriage, that is now abrogated, that is now omitted, that is now removed from the schedule, because हिंदू मैरिज के लिए, वैलिड हिंदू मैरिज के लिए सबसे बड़ी पहली कंडीशन क्या है? क्वालिफिकेशन, that parties must have attained certain age. मैरिजेबल एज क्या है? लीगल मैरिजेबल एज लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18. ये डिफरेंस क्यों है आपके हिसाब से? लड़कियों को क्या लगता है, लड़कों को मैच्योरिटी लेट आती है? सी, मेजोरिटी के लिए तो 18 साल काफ़ी है. यू गेट वोटिंग राइट, यू बिकम अ मेजर, यू गेट कॉन्ट्रैक्टिंग राइट, आप एक अलग इंसान समझे जाओगे, पेरेंटेज ख़त्म हो जाता है. लेकिन शादी करने के लिए 21 साल का ये रखा हुआ है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. दैट रीजंस आई विल एक्सप्लेन यू सम टाइम लेटर. सी, क्या होता है, ये डिफरेंस रहने का ज़रूरत है, लेकिन वो मैं बाद में आपको कभी लेक्चर में बताऊंगा, अभी बताने का टाइम नहीं है. सो एज फार एज कंसिडर, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? दैट द ब्राइड, या लड़का कितना होना चाहिए? 21, और लड़की या ब्राइडग्रूम कितनी होनी चाहिए? सॉरी, ब्राइडग्रूम उल्टा हो गया. ब्राइडग्रूम मस्ट बी 21 years एंड ब्राइड मीन्स द वाइफ, द गर्ल मस्ट बी 18 years ऑफ एज. सो गार्डियनशिप हैज नाउ बीन रिमूव्ड. देन सी, गो टू सेक्शन 7, ceremonies for a Hindu marriage. Now see, Hindu marriage means what? That marriage is being solemnized as per the Hindu Vedic rites. हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ सेरेमनीज करके, कुछ त्याला मराठीत विधी म्हणतात, वो करके ही शादी संपन्न हो रही है. सो नाउ व्हाट आर दोज विधीज, वो देख लो. सेक्शन 7 देख लो, रीड सेक्शन 7. Subsection 1, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either parties thereto.
either party is there too. वो either party is there too, if it is your own book, please underline those words. Now let us read this again. A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either parties thereto. Why this either parties thereto? I will explain. And then read subsection 2 first. Where such ceremonies, rites and ceremonies include the Saptapadi. What is Saptapadi? Bracket में लिखा हुआ है देखो. That is the taking of 7 steps by the bridegroom and bride jointly. So husband and wife दोनों jointly लेंगे, एक साथ मिल के. Husband बाद में लेगा, wife पहले लेगी, ऐसे नहीं. Both have to take that steps together. Before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. So अगर parties are governed by certain ceremonies जिसमें सप्तपदी भी एक है, in that case सप्तपदी हुए बगैर शादी संपन्न नहीं होती है. This thing will be understood very well by students who are already married, like me, जो 20 साल पहले ही शहीद हो चुके हैं. Then certain students who have attended दूसरों का शादी. तो शादी क्या है ये समझने के लिए खुद शादी करने की जरूरत नहीं, दूसरों का शादी में भी जाके आप देख सकते हो. अभी देखो, तो सप्तपदी हुए बगैर शादी नहीं हो सकती ना. उसी आपके पास एक चॉइस है, आप या तो हिंदू धार्मिक पद्धति से शादी करो, जिसको वैदिक पद्धति बोलते हैं, लॉन्ग मेथड है, सब रिचुअल्स रहते हैं, लेकिन जब तक सप्तपदी नहीं होती है तब तक शादी नहीं होती है. या वैदिक पद्धति से कर लो या आर्य समाज के पद्धति से कर लो. सर्टन जो बाय द वे सेरिमनीज है ना, जो मैंडेटरी नहीं है, उनको बाईपास किया जाता है. लेकिन आप वैदिक पद्धति से, शॉर्टकट मेथड से भी करो, उसमें सप्तपदी तो रहेगा ही रहेगा. दैट इज द रीजन व्हाई आई रिपीट दैट द मैरिज कैन बी सोलमनाइज्ड ओनली इन केस ऑफ द सप्तपदी. नाउ सी, सप्तपदी मैंडेटरी किसके लिए है? फॉर हिंदूज एंड जैन्स. इवन जैन्स अंडर व्हेन दे सोलमनाइज मैरिज, उनको सप्तपदी करनी ही करनी है. सप्तपदी एप्लीकेबल किसको नहीं है? टू बुद्धिस्ट एंड सिख्स एंड इवन जट्स. नाउ देखो उनका क्या रहता है सेरेमनीज, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे. अगर पार्टी सिख है सरदार जी, तो उनके यहाँ पे उनके धर्म के हिसाब से देयर इज अ मैंडेटरी सेरेमनी जिसको अनंतकारा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अनंतकारा. जो रिचुअल्स किसी भी गुरुद्वारा में जाके होती है, वो एक सेवा होती है जो जहाँ पे करनी पड़ती है. देन द मैरिज इज सोलमनाइज. देन कमिंग टू बुद्धिस्ट पीपल, जे डॉक्टर आंबेडकरांचे फॉलोअर्स आहेत, जे बौद्ध आहेत, त्यांनी काय केलं? दे वेंट अवे फ्रॉम हिंदुइज्म. दे डिड नॉट वॉन्टेड टू रिमेन अ हिंदू. लेकिन सब फीचर्स हिंदूज के ही है, नाम भी आप देख लो, आज भी हिंदूज के ही है. लेकिन they are different. They don't consider, or they are not actually, they don't consider themselves to be Hindus. संस्कार सब कुछ हिंदू का ही, संस्कार सब हिंदुओं का ही है. लेकिन वो शादी करने की तरीका जो है, जिसमें दे हैव नॉट एक्सेप्टेड सप्तपदी. उनके यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई बुद्धिस्ट मैरिज आपने देखा है, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू अ निकाह, या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है ना जो क्रिश्चियंस में होता है, वैसे निकाह पढ़वाया जाता है टू दैट एक्सटेंट. उनका वो धर्मगुरु आता है, जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध रहते हैं उनका वो धर्मगुरु आता है. देन इफ़ दे आर फॉलोअर्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो रिस्पेक्टेड बाबा साहेब अम्बेडकर का एक फ्रेम लगेगी. देन गौतम बुद्ध की वहाँ पे फ़ोटो रहेंगी क्योंकि बौद्ध है. एंड कैंडल्स आर पुट अप, वहाँ पे पंक्तियाँ समय नहीं रहता, कैंडल्स आर पुट अप. एंड सर्टन ओथ्स आर एक्सचेंज, जहाँ पे वो एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं. एंड देन सर्टन ओथ्स आर गिवन दैट येस आई विल रिस्पेक्ट हर, मैं उसका मान रखूँगा, उसको बराबर से मेंटेन करूँगा, घर में घरात धन धान्य सगळं भरून तिचं नीट संगोपन करीन, तिची काळजी घेईन, मैं उसका जिम्मेदारी उठाऊंगा. एंड देन शी हैज़ टू टेक सर्टन ओथ्स दैट येस आई विल एक्सेप्ट हिम एज माई हस्बैंड, मैं उसकी सेवा करूँगी, उसका ध्यान रखूँगी, उसका ख्याल रखूँगी. एंड देन दैट मैरिज इज सोलमनाइज. तो कभी बुद्धिस्ट मैरिज अगर आप अटेंड करो तो वो भी देख लोगे. सो इट हैज़ सर्टन एस्पेक्ट्स लाइक अ मुस्लिम मैरिज. नाउ सी, आइदर पार्टी इज देयर टू, मैंने वो वर्ड आपको मार्क करने को बोला. नाउ लेट मी रीड इट अगेन, देन आई विल एक्सप्लेन. अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, रीड अगेन. अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टीज देयर टू.
नाउ व्हाई दिस आइदर पार्टी इज देयर टू, सी ये एक सवाल कहाँ पे उठता है मालूम है, अगर दोनों हिंदू है सप्तपदी, अगर दोनों जैन है तो भी सप्तपदी, लेकिन इशू कहाँ पे आएगा, वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज हिंदू एंड अनदर इज अ सिख, और वन ऑफ द पार्टीज इज अ हिंदू एंड अनदर पार्टी इज अ बुद्धिस्ट, और वन ऑफ द पार्टीज तो वहाँ पे ऑप्शन आया जट है। अभी देखो मैंने अभी डिस्कस किया कौन सा, बौद्ध लोगों का, अभी देखो अनंतकारा भी डिस्कस किया। देन जट लोग जो होते हैं उनमें एक रिचुअल है शादी, उसमें संपन्न होता है, उनके यहाँ पे भी सप्तपदी नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं चादर ओढ़नी। हस्बैंड और वाइफ वो दोनों को नीचे बिठाया जाता है शादी के लिए, यूजुअली नीचे पाटा और बसाने लगता है, वो जो फ्रेम जैसा रहता है पार्ट रहता है उसके ऊपर बैठना पड़ता है, एंड वो दोनों को सामने बिठा के बीच में कुछ हवन विवन जैसा रहता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के दोनों के सर को कवर करेगी ऐसे एक बड़ी चादर लाई जाती है, बड़ा डबल शीट बेडशीट वगैरह कैसा रहता है वैसा दोनों को कवर किया जाता है, और दोनों के सर के ऊपर से दोनों को ऐसे बिठाया है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, तो एक बड़ी सी चादर डाले जाते हैं जो दोनों के सर को एक ही टाइम पे कवर करेगी। नाउ दिस सिग्निफाइज दैट दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब क्या, दोनों एक ही चादर में सोएंगे, एक ही बेड में सोएंगे, एक साथ रहेंगे, दे विल कोहैबिट विथ ईच अदर, सो दिस थिंग इज देयर। सो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे आता है, नाउ सपोज इफ आई एम अ हिंदू मैन एंड आई वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज बुद्धिस्ट, we have option either to undergo Hindu marriage and undergo the ceremony of Saptapadi, or else we can also exchange oath as per the Buddhist paddhat, as per the Bauddha paddhat. Then suppose लड़का सिख है और लड़की हिंदू है, तो ऑप्शन है आइदर अनंतकारा कर लो या तो फिर सप्तपदी कर लो, या जट है, लड़का जट है और लड़की हिंदू है तो या तो चादर ओढ़ लो या सप्तपदी कर लो, लेकिन आइदर में से। सो नाउ सी फॉर एग्जांपल लड़की हिंदू है और लड़का सिख है, तो दे कैन डू आइदर अनंतकारा और सप्तपदी, वो जाके बुद्धिस्ट पद्धत से शादी करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सो जो भी सेरेमनीज यू अंडरगो दैट मस्ट बी एप्लीकेबल टू आइदर पार्टीज देयर टू। सो यहाँ पे ऑप्शन है आइदर और, लेकिन वो दोनों ही करना है, तीसरा कुछ और करोगे तो मतलब नहीं है, देन दैट मैरिज विल बिकम इनवैलिड, वो सेरेमनी इनवैलिड हो जाएगा और मैरिज वॉइड हो जाएगा। देन सी सेक्शन 8 एंड देन आई कंक्लूड फॉर दिस लेक्चर। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। कभी सुना है मैरिज रजिस्टर करना पड़ता है? ज़्यादातर शादियाँ रजिस्टर होती ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अ नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेबल लॉ इन महाराष्ट्र अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, marriages solemnized by Hindus has to be compulsory registered. See section 8 subsection 1 registration of Hindu marriages. For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the state government may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose. So शादी पहले संपन्न होती है और बाद में रजिस्टर की जाती है. Then see subsection 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory in the state or any part thereof. So under this provision in Maharashtra, हिंदू मैरिज कंपल्सरी रजिस्टर करना ही पड़ता है. लोग करते हैं या नहीं वो अलग बात है. Then read further. Shall be compulsory in the state or in any part thereof. Read further. Whether in all such cases or in such person contravening any rule made in that behalf shall be punishable with fine which may extend to 25 rupees. 25 रुपये. त्या आईला सिगरेट ओढायला उभं राहिला माणूस तर 17-18 रुपये सिगरेटीला लागतात, पण 25 रुपये फाईन भरायला लागते. अँड इन एनी केस
the status of marriage is not affected. That is clarified in further section. 3 और 4 not very important from your point of view. Directly go to subsection 5. Notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry. Read it again. Notwithstanding anything contained in this act, the validity of any Hindu marriage in no way be affected by omission to make the entry. So even if any marriage after solemnization, the parties don't register that marriage, that will not affect the legality of that marriage. अगर marriage legal होगा और बराबर से हुआ है, in that case, if that marriage satisfies other conditions of the valid Hindu marriage and it is not registered, that marriage does not becomes invalid, illegal or void. Okay. Then see, so यहाँ तक तो clear हो गया. Then next lecture I will be covering, in the next video number 2, I will be covering the essential conditions of a valid Hindu marriage. कि क्या होती है. So for a moment before attending next lecture, all students are requested to kindly read section 5, subsection 1 to subsection 5 minutely and carefully. So whatever I am teaching in next lecture will be easy to understand. ये एक ही चीज़ है जो हिंदू मैरिज एक्ट में समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.